پاکستان کو درخواست دی ہے روس نے، میکسیکو نے، فلپائن نے اور انڈونیشیا نے۔ یہ نئے 4 ممالک آئے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے، پاکستان سے خواہش کی ہے، درخواست دی ہے کہ اپنا چاول ہمارے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ، چاول جو الحمدللہ ایکسپورٹ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس سال 2023 میں ایکسپورٹ ہوا ہے۔ اگر کاشت بڑی ہے، الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی ہے، اور ہمارا چاول دنیا میں، پوری دنیا میں غذائیت کے اعتبار سے، اس کی خوشبو کے لحاظ سے، اس کی کوالٹی سے، اس کے پوری دنیا میں لائک کیا جانے والا الحمدللہ باسمتی پاکستان کا چاول ہے۔ ہماری انڈیا کی جو ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے 7 لاکھ ٹن، اور انڈیا کی جو ہوئی ہے 52 لاکھ 52 لاکھ ٹن۔ میں حکومت پاکستان کو بھی یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری 4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، اس میں ہمارے ذمہ دار کے اوپر جتنے بھی ٹیکس ہیں ان کی چھوٹ دیں گے، اللہ کے فضل سے ہماری پیداوار بھی بڑھے گی، ہمارا کسان بھی خوشحال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں آپ کو پاکستان میں کتنا دان کاشت ہوا، کتنا چاول بنا، کتنا چاول ایکسپورٹ ہوا، اور کتنا اس وقت ملک میں موجود ہے، یہ میں پچھلے سال 2023-24 کے جو اعداد و شمار ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گا، کیونکہ پچھلے سال 2023 کی جو کاشت ہے وہ گورنمنٹ کے ٹارگٹ سے تقریباً 9 سے 10 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا اس سے 9 سے 10 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہمیں اس کا بہت اچھا دنیا میں ہمارا اس وقت کوالٹی کے لحاظ سے اور ایکسپورٹ کے لحاظ سے اس سال بہت اچھا سرایا گیا۔ ہمارے چاول کی خوشبو، ہماری غذائیت، ہماری کوالٹی کے حساب سے بھی الحمدللہ اس وقت پاکستان کو 17 امتیاز ہی سمجھ لیں جو اس سال ہوا ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہ اتنا چاول ایکسپورٹ ہوا ہے، نہ اس کا اتنا آج تک ریونیو ملک میں آیا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 4 ارب ڈالر کے قریب، بلکہ 4 ارب ڈالر سے پلس میں اس وقت الحمدللہ 2023 کا چاول ایکسپورٹ ہوا ہے۔ ہماری پیداوار بھی بڑی ہے اور ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی ہے۔ اسی طرح کسان کو بہت اچھا بینیفٹ ملا، کسان کو بہت اچھی پرائز ملی، اور اس کے باوجود الحمدللہ پچھلے سال 2023 میں ہمارا کسان بہت خوشحال تھا۔ رائس انڈسٹری نے الحمدللہ بھرپور کام کیا، بہت اچھے رہے۔ میں ہو سکتا ہے کوئی دوست میرے ملنے والے یا کوئی یہ میری بات سننے والے میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ میں نے سٹارٹ سیزن 2023 شروع ہونے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ سیزن ہے اس سال جو خریداری کرے گا، مال بیچے گا، ٹریڈ کرے گا، حاضر لین دین کرتا رہے گا، انشاءاللہ وہ جیتے گا، اس کی جیت ہوگی۔ جو سٹاک کر کے رکھے گا، جو ایک بار مال خرید لیا پھر اس کے بعد اس کو سیل کرے گا،
मुमकिन है उसको उतना बेनिफिट ना मिले। तो जिन्होंने ट्रेड की है, लेन देन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो जिन्होंने स्टॉक किया, क्योंकि फसल ज़्यादा का ये जो अदादो शुमार है, जो हालात वाक़या देख के बात की जाती है, इसमें फसल ज़्यादा काश्त हुई थी, उसका चावल ज़्यादा बना, इसलिए जब फसल भरपूर होगी स्टॉकिस्ट को उसका इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, ये मैं 2023 के अदादो शुमार बता रहा हूँ। अभी धान की काश्त 50 लाख एकड़ का टारगेट था और 60 लाख एकड़ तक इसकी काश्त हुई थी और हमने इसको 7 लाख टन हमारे एक्सपोर्टर हजरात ने, हमारे मिलर हजरात ने और जितने भी नेशनल इंटरनेशनल राइस का चावल का कारोबार करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काविश की और 7 लाख टन चावल जो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इस साल 2023 में एक्सपोर्ट हुआ है। अगर काश्त बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी है और हमारा चावल दुनिया में, पूरी दुनिया में ग़ज़ाइयत के एतबार से, इसकी खुशबू के लिहाज से, इसकी क्वालिटी से, इसके पूरी दुनिया में लाइक किया जाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बासमती पाकिस्तान का चावल है। और बासमती वैरायटी जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, जिसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पाकिस्तान की वैरायटी है। पंजाब पाकिस्तान की ये ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि आज तक इसका नेमल बदल कोई भी मार्केट में नहीं है। तो दूसरा, ये इंडिया के मुकाबले में हमारा कंपीटिटर इन इंडिया है। इंडिया के मुकाबले में हमारी इंडिया की जो हमारी एक्सपोर्ट हुई है 7 लाख टन और इंडिया की जो हुई है 52 लाख 52 लाख टन, जो कि इंडिया 1.5 अरब का मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है और हमसे वो 9 से 10 गुना बड़ा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी, इस वक्त पूरी दुनिया में लाइक किए जाने वाली और 3 से 4 नए ऐसे ममालिक आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के चावल की ख्वाहिश की है और इंशाअल्लाह इस साल 2024 में उन मुल्कों में भी ये चावल हमारा एक्सपोर्ट होगा। और ये हमारी चावल की क्वालिटी और हमें पाकिस्तान में जितने भी ये काम करने वाले हैं उनको सराहा गया और पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है रूस ने, मैक्सिको ने, फिलिपाइन ने और इंडोनेशिया ने। ये नए 4 ममालिक आए हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान से ख्वाहिश की है, दरख्वास्त दी है कि अपना चावल हमारे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की इजाज़त दें आप। और इंशाअल्लाह इस साल इन 4 ममालिक में भी हमारी एक्सपोर्ट होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल से 2023 से इंशाअल्लाह 24 में हमारी एक्सपोर्ट मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत करे। तो दूसरी बात, हमारा कंपटीटर जो इंडिया है ना, इंडिया में 52 लाख टन चावल जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उसमें अभी तक उनके जो मुल्क में रिजेक्ट किया गया चावल है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है।
कुछ उनका बैन यूरोप ने कर दिया था, कुछ चावल को बैन गवर्नमेंट यूरोप के जितने ममालिक हैं उन्होंने बैन कर दिया था, और कुछ राइस उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि उनका इलेक्शन है तो आवाम को सस्ता मिले। जो इस वक्त अगस्त 2024 में अब वो उठाने की कर रहे हैं, लेकिन नई फसल भी आ गई है। पिछला चावल भी उनका पड़ा है, नई फसल भी आ गई है, कुछ चावल उनका यूरोप ने रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में इंडिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछले साल का चावल मुल्क के अंदर बहुत कम है, तो ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। उनका जो चावल है इस वक्त चावल दान के जितने फार्मर ने, जिमीदार ने, उससे रिलेटेड कारोबार करने वाले में वो परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जिम्मेदार, इंडिया के जिम्मेदार को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हमारे जिम्मेदार के साथ हमारी गवर्नमेंट ज्यादती करती है। उन्होंने तमाम के तमाम टैक्स जो है ना ज़राअत के ऊपर माफ कर दिए हुए हैं। किसी चीज की ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं है, बिजली का बिल फ्री है, कोई ट्रैक्टर लें, खाद लें, कोई चीज खरीदारी करेगा जिम्मेदार उसके ऊपर टैक्स नहीं है, पानी का, बिजली का बिल ही नहीं आएगा उनका। ठीक है, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। इसमें हमारे जिम्मेदार के ऊपर जितने भी टैक्स हैं उनकी छूट देंगे। अल्लाह के फजल से हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा। और किसान जो हमारी जो ज़राअत है ना, हमारी ज़राअत रीढ़ की हड्डी की मानंद है। मुल्क की मुआशत के लिए हमारी पूरे अनाज की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पैदावार हमारे मुल्क में होती है। हमें कोई खाने की चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करनी पड़ती, हमारी इंपोर्ट होती है। फिर मैं इसके आगे एक और चीज़, ये तो मैंने राइस का बताया ना कि राइस ने टॉप किया है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट में। इसके बाद ज़राअत के हवाले से हमारे किसानों ने जो भरपूर तरीके के साथ तिल की काश्त की है, कोई तिली बोलता है, कोई तिल बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तिल की काश्त भी पाकिस्तान की तारीख में सबसे टॉप में आई है इस साल। 2023 के ये दादोशुमार हैं। इसके बाद मकई, मकई 2023 में सबसे टॉप में आई है। यानी कि मेरी बात करने का मकसद है, आज तक चावल इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ, आज तक मकई इतनी कभी भी किसी साल में एक्सपोर्ट नहीं हुई, आज तक तिल कभी कितना इतना कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये तीनों फसलें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल टॉप में आई हैं पाकिस्तान की। तो ये खुशाइन खबर है। जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ये ज्यादती कर रही है, कम से कम इन लोगों के ऊपर टैक्स की छूट देनी चाहिए। और खास करके राइस इंडस्ट्री जो बंद पड़ी है, जो नहीं चल रही, 2 या 3 माह के लिए, 4 माह के लिए नहीं चलेगी, उसके फिक्स चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं उसके हवाले से। और मैं ये 93 फी यूनिट 93 रुपए का है, 93 रुपए का फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। और इसके फिक्स चार्जेस जो बढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस लगा दिए हैं, ये इसके ऊपर भी छूट देनी चाहिए और किसान को रिलीफ मिलेगा। तो ये पूरी राइस इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। अकेली राइस इंडस्ट्री, जो राइस इंडस्ट्री है वो अकेली राइस मिल नहीं है, अकेले राइस एक्सपोर्ट नहीं है, अकेला राइस से रिलेटेड ब्रोकर आड़तिया नहीं है, कमीशन एजेंट नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, ये सब को मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है।
ये सब एक इंडस्ट्री के साथ मिले हुए हैं। ये सब मिलेंगे तो ये राइस इंडस्ट्री बनेगी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए और हम सबको इसकी आबियारी करनी चाहिए। मैं इसके बाद आपको अदादो शुमार 2024 में अभी जो हमारी काश्तकारी हो गई है, मुकम्मल तकरीबन हो गई है। अगस्त का ये महीना है, 2024 है। इसमें तमाम तकरीबन हमारे पूरे मुल्क में काश्तकारी दान की मुकम्मल हो गई है। तो मैं इसका देखें, अब ये बात बड़ी लंबी हो जाती है, इस हवाले से मैं आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि इस साल 2024 में कितनी धान की काश्त हो गई है और उसके क्या असरात होंगे मुल्की मुआशरत के लिए, मुल्क के लिए, हमारे लिए, किसान के लिए क्या प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है और क्या उसके प्रॉब्लम है किसान के, और उनको कैसे फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि किसान के साथ ही सबकी रिलेशनशिप है। तो मैं इंशाल्लाह इसके अदाद शुमार काश्तकारी के मुकम्मल आपको बताऊंगा। और नए एक्सपोर्ट के अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान के लिए और मज़ीद खुलने की इस वक्त उम्मीद है। मीटिंगें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो भी हो गए तो हम अपने हमसाए मुल्क से कहीं आगे निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आज ये भी शायद हमारे सुनने वालों के लिए पहली बार ही होगी कि पाकिस्तान ने पिछले साल तकरीबन कुछ 18-20 डॉलर की एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई थी बासमती में। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 डॉलर के करीब हमारी उनसे रेट में बेहतरी आई है। अगर 35 डॉलर हमारे उनसे बेहतर माल बिका है तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वक्त जो इंडिया के लोगों ने माल नहीं बेचा, नहीं सेल किया, वो भी प्रॉब्लम में है, उनके रेट गिर गए हैं, उनके पास सेल के जो है वो कस्टमर नहीं है, वो प्रॉब्लम में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछला माल सारा निकल गया है तकरीबन। इस साल नए 2024 के तमाम अदाद शुमार मैं आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर में बताऊंगा आपको। बकाया दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।